हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन एंड ग्रेट एंड ऑल्सो मेंटेनिंग social distancing and taking all the precautions that one should take in these tough times, right? So without wasting much time, I welcome you all in this series in which we are covering NSCGS previous year questions and some questions which are NSCGS types, and we are discussing about how to solve those particular type of questions, right? I hope you have watched the first episode or the first video, right? So we'll be continuing from that video itself, right, and continuing to some more good questions. So let's see. Before starting, okay, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and for the past 8+ years I have been teaching mathematics for IIT JEE, Olympiads and NSCGS also, right? So I hope everybody by now I think knows me now, right? तो start कर सकते हैं हम next, right? तो चलो, let's without wasting much time start करते हैं. Let's see our first question of the day, right? We'll see different approaches in this series कि कैसे किसी question को attempt कर सकते हैं, right? Wherever possible I'll try to discuss multiple methods. ठीक है? So बच्चों, let's see our first question. It says in the given figure AB is to BC is 3:4. So AB is to BC is given to us 3:4. AE is to EC is given us in the ratio of 3:2, right? And then comes EC. This length EC is given to us to be 8 centimeter. तो लिख लेते हैं बच्चों. Okay, let's write it on the diagram itself. Then बच्चों, next length BC is given to be 16 centimeters. So this whole length is 16 centimeters BC, and then DC length is 10. So let's write this as 10 centimeter. So बच्चों, जो हम orally कर सकते हैं डायग्राम पे वो तो कर ही लेते हैं. So बच्चों, length of BC is 16, this BD length is 10. So the difference of that will be BD, right? 16 minus 10. So ये length हो जाएगी 6 centimeters, right? Simple enough. तो बच्चों हमें ढूंढना क्या है? We have to find the perimeter of the quadrilateral ABDE. So this is the quadrilateral ABDE, है ना? तो अब करना क्या पड़ेगा हमें बच्चों? So इसमें we know BD already out of the 4 sides, right? So the other task is to find AB, AE and DE. तो बच्चों यहाँ पे एक बात देखते हैं. BC की टोटल लेंथ हमें मालूम है. So we can find AB from this given information that AB is to BC is 3:4. So लिख लेते हैं. So AB is to BC is 3:4, and let's put in the values. So AB upon BC is 16 is equal to 3:4. So बच्चों, this 4 will cancel 16 for 4. So we will get AB is equal to 3 into 4, that is 12 centimeters. ठीक है? तो बच्चों ये वाली AB की लेंथ हो गई 12 centimeters. डायग्राम पे साथ साथ में लिखते चलना है, ठीक है बच्चों? So AB is 12 centimeters, BD is 6. तो दो साइड्स हो गई अभी. नेक्स्ट, सिमिलरली बच्चों हमें पता है AE is to ECB is 3:2. So AE हमें मालूम नहीं है, EC मालूम है लेकिन, right? So we should be able to find AE also. So AE is to EC is 3:2. So now this will give us what? AE upon EC is 8 equal to 3/2. So cross multiplying AE will be 3/2 of 8. So चलो कैंसिल कर ही देते हैं. So 2 will cancel 8 for 4. So again 4 into 3, that's 12. So AE will also be 12 centimeter. तो बच्चों ये लेंथ भी 12 सेंटीमीटर होगी. सो बच्चों यहाँ तक तो कुछ चीज़ें कॉमन ही है, यही करना ही था, ठीक है? आफ्टर दिस स्टेप I have two different ways to calculate DE. Only unknown length that is remaining is DE. तो DE find करने के यहाँ से आगे बच्चों दो ways हैं. Okay, I'll explain you by method 1 first. Okay, method 1 is by similarity. बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, triangle CDE is similar to triangle CBA. Oh sorry, CAB. Okay, I'll write here triangle CDE is similar to triangle CAB using AA criteria. Okay, using AA criteria we can say triangle CDE is similar to triangle CAB. How? देखो एंगल C कॉमन है दोनों में, and angle E is 90 degree here and angle B is 90 degree.
सो दो एंगल सेम हो गए 90 90 एंड एंगल सी इज कॉमन. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. नाउ आई कैन यूज, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं बोल सकता हूँ रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन. तो मैं क्या लिख सकता हूँ बहुत इजीली, ओके ई के ऑपोजिट साइड लिख लेते हैं 10. ओके लेट मी राइट द रेशियोज फर्स्ट. सो सी डी अपॉन, तो सी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग इट्स ऑपोजिट टू एंगल 90 डिग्री, सो अपॉन ए सी फ्रॉम द अदर ट्राइंगल इज इक्वल टू डी ई. इसमें से चूज करेंगे तो डी ई इज ऑपोजिट टू सी एंड ओवरऑल ए बी. ठीक है बच्चों, तो यहां से अब बच्चों डी ई कितना आएगा, डी ई विल बी इक्वल टू सी डी इंटू ए बी अपॉन ए सी. सो लेट्स पुट इन द वैल्यूज. सी डी कितना है, सी डी इज 10 इंटू ए बी कितना है, ए बी इज 12 अपॉन ए सी इज 12 प्लस 8 20. ठीक है बच्चों, सो you'll see again, so 10 will cancel 20 for 2 and 2 will cancel 12 for 6. तो बच्चों DE की लेंथ आ रही है 6 सेंटीमीटर्स. ओके सो नाउ आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड द पेरीमीटर, वेरी इजी. पेरीमीटर के लिए क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6. सो दैट विल गिव यू 24 प्लस 12, सो दैट इज 36 सेंटीमीटर्स. सो डी आंसर आ जाएगा बच्चों. ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द मेथड. ओके राइट, पहला मेथड है. तो एक काम करते हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ सम स्पेस, सो सेकंड पेज पे करते हैं. बट डू रिमेंबर दीज साइड्स, हमने क्या क्या ढूंढ लिया है, ए बी ए ई एंड बी डी. राइट, लेट्स सी, लेट मी राइट इट अगेन. ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं वो लेंस. ठीक है, तो बच्चों ए ही हमने कितना ढूंढा था, 12 सेंटीमीटर्स. दिस इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर्स. बी डी हमने ढूंढा था 6 सेंटीमीटर्स, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स था. और सी ई कितना था, ये भी 8 सेंटीमीटर्स आई थिंक, लेट मी चेक. ओके 8 सेंटीमीटर्स. ठीक है बिल्कुल बच्चों. ठीक है, सो जो मैं आपसे बच्चों मेथड डिस्कस करना चाहता हूँ अब वो क्या मेथड है, मेथड 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. मैंने जैसे आपको बताया मेथड 1 आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हमने कुछ चीजें ढूंढ ली हैं उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं. राइट, नाउ मेथड 2 कुड बी, बच्चों हम क्या कर सकते हैं, आई कैन ज्वाइन दिस AD. ओके लेट्स से AD इज ज्वाइन नाउ. ओके लेट्स से राइट, तो बच्चों AD को ज्वाइन किया, दिस इज अ 90 डिग्री. राइट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. ठीक है, ओके एक्चुअली 3 मेथड में तीसरा भी डिस्कस करता हूं. So AB square plus BD square is AD square and this is also right angle triangle, right? तो उसमें AD square को फर्दर किसके इक्वल लिख सकता हूँ, AE square plus DE square. तो बच्चों अगर आप देखते हो इस एक्सप्रेशन में और इसमें 3 ऑफ द वैल्यूज आई नो. ठीक है, AB कितना है 12 स्क्वायर प्लस BD कितना है 6 स्क्वायर इक्वल टू AE कितना है 12 स्क्वायर अगेन प्लस DE स्क्वायर. सो वेरी सिंपली DE स्क्वायर इज 6 स्क्वायर एंड आई गेट टू नो DE अगेन टू बी 6. सो एज ऑलवेज उसके बाद आप पेरीमीटर तो ढूंढ ही लोगे, DE आ गया आपके पास. सो पेरीमीटर इज 36 एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. अदर देन दैट मेथड 3 इज congruency. You can simply make these two triangles to be congruent. Triangle ABD is congruent to triangle AED. How? One angle is 90, this side is equal to this side 12 centimeters each and this side is common. So using RHS criteria. Okay, so according to that also तो आप क्या बोल पाओगे, BD is equal to DE, right? Corresponding sides, corresponding parts of corresponding triangles. So according to this also आपके पास आ जाएगा DE equal to 6 centimeters. So बच्चों अगर आप देख रहे हो एक ही क्वेश्चन को करने के आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर सम पर्टिकुलर स्टेप्स आप मल्टीपल वेज में कर पा रहे हो. सो देयर आर 3 मेथड्स टू डू दिस क्वेश्चन आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम. राइट, आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए एंड आई थिंक इफ यू इवन ट्राई सम मोर आपको हो सकता है कोई और मेथड भी मिल जाए. राइट, सो डू ट्राई दैट ऑल्सो. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर देन. राइट, चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन बच्चों. सो इन ट्राइंगल PQR MN is parallel to QR. ओके, एक लाइन है MN which is parallel to the line QR such that PM is to QM. ओके, तो थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, अदरवाइज इट बिकम्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम. ये है M, ये है N. सो MN is parallel to QR
and PM is to QM. Okay, PM is to QM is 2:3. ठीक है, the ratio of the area of triangle PQR and quadrilateral QRMNM. Okay, ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों ये तो, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ यू कैन से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. व्हाट डज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेज कि अगर एक लाइन MN इज पैरेलल टू QR, then that line MN divides the sides PQ and PR in the same ratios, meaning PM is to MQ is similar to triangle is similar to or is equal to PN is to NR. Okay, also बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली दिस ट्राइंगल PMN is similar to triangle PQR. okay, अकॉर्डिंगली पैरेलल साइड होती है एक, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल PQR. हाउ? क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एंगल P कॉमन है. ओके, सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये वाला एंगल भी कॉमन हो जाता है, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो अकॉर्डिंगली द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट, बाय AA क्राइटेरिया आप कह सकते हो. सो वेरी सिंपली आई कैन से ट्राइंगल PMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ठीक है, आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. ओके, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड दिस थिंग इज द काइंड ऑफ द सेम थिंग. तो MN इज पैरेलल टू QR, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल PQR, राइट. अब एक बार बच्चों ये हो गया अगर आपके पास, सो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल PM इज टू QM हमें मालूम है, राइट, PM इज टू QM मालूम है. फ्रॉम दिस रेशियो कैन आई फाइंड PM इज टू PQ, दैट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो बच्चों यहां से रेशियो प्रोपोर्शन का हम लॉजिक समझते हैं. देखो कैसे करते हैं. इफ PM इज टू QM इज 2:3, आप एक बात हमेशा समझ सकते हो, यू कैन ऑलवेज अज्यूम PM टू बी 2x एंड QM इज 3x, राइट. तो रेशियो हमेशा 2:3 का हो गया. नाउ दिस बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज PM इज टू PQ. देखो PM इज टू PQ अकॉर्डिंगली विल बी व्हाट, PM कितना है हमारे पास 2x है, अपॉन PQ कितना हो गया 2x प्लस 3x, सो दैट इज 5x. ठीक है, so the ratio will come out to be 2:5. okay, so PM is to PQ हमें मिल गया 2:5. now how will this help us? बच्चों अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, we should know from similarity concepts कि the ratio of the area of the two triangles is equal to ratio of the squares of the sides. okay, meaning मैं लिख देता हूं area of triangle PMN upon area of triangle PQR, okay, will be equal to PM upon PQ whole square. So it's equal to square of the ratio of the two sides. ठीक है, तो इसका यूज करते हुए बच्चों, तो PM upon PQ कितना है 2/5 whole square, so that is 4/25. ठीक है, सो अगेन वही कॉन्सेप्ट फिर से लगाते हैं बच्चों रेशियो को समझने का. सो इफ द रेशियो ऑफ द टू एरियाज इज 4/25, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें किसका रेशियो ढूंढना है, एरिया ऑफ PMN एंड क्वाड्रिलेटरल QRNM. बट व्हाट डू वी नो कि एरिया ऑफ QRNM इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR माइनस PMN, राइट, ये बोल सकते हैं. तो वो लिखते हैं यही समझने के लिए बच्चों. सो अगेन लेट्स से PMN और PQR इसका रेशियो है 4/25. सो बच्चों अगर ये 4y है, तो पूरा ट्राइंगल PQR, होल ट्राइंगल PQR विल बी 25y. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड. तो एज आई सेड एरिया ऑफ QRNM विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ PQR माइनस एरिया ऑफ PMN, राइट. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 25y माइनस 4y, दैट इज 21y. So now you just need to find the ratio. okay, जो आपने हमसे पूछा जा रहा है. so okay, एरिया लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते होते हैं, that is PMN upon, okay, I think there's a bit of problem with the space, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, PMN upon QRNM will then be okay area of PQR. okay, I'm sorry guys, PQR का रेशियो ढूंढना है, I'm sorry, PQR का रेशियो. ओके, सो PQR का एरिया कितना है 25y अपॉन 21y. सो रेशियो इज 25:21. दैट विल बी योर आंसर, बी ऑप्शन. सो मेनली जो कॉन्सेप्ट बच्चों रेशियो के साथ इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए, देखो रेशियोज
एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, दैट्स इट। तो रेशियो का समझ में आना जरूरी है। सो पेपर में बच्चों आपके पास टाइम कम होता है तो यू हैव टू बी गुड इन रेशियोज ऑल्सो, ठीक है। तो रेशियोज को बहुत ध्यान से सीख लो कि कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आई हैव टोल्ड यू वन ऑफ द वेज, बट विद प्रैक्टिस आप बहुत जल्दी इंट्यूटिवली कर सकते हो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग गाइस। ओके, तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ प्रीवियस ईयर एनएससीजेएस 2011 क्वेश्चन। तो डरने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट सो दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो देखते हैं, बट इसमें क्या है ना बच्चों, काफी सॉल्यूशंस मैंने चलो जनरली चेक किया, गिवन बाय सम डिफरेंट एंटिटीज, तो आंसर ही गलत दिया हुआ था। ओके, आंसर गलत कैसे? दे डिड नॉट पे अटेंशन टू अ डिटेल। मैं बताता हूं कैसे। ऑल द क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, देखना कितना क्या गलती करवा देते हैं वो लेकिन आपसे, ठीक है। तो अच्छा देखो, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, सिमिलैरिटी वाला। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, ये जो DE है इज पैरेलल टू BC। सो अगेन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट ट्राइंगल ADE, मैं सीधा लिख देता हूं अभी, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, राइट। डायरेक्ट बोल सकते हैं DE पैरेलल टू BC है। तो नाउ व्हाट डू वी नो, AD पता है मैं 3x - 2, मैं मार्क कर देता हूं। सो दिस इज 3x - 2, राइट। ओके, AE कितना है? दिस इज 5x - 4, BD here is 7x - 5 एंड EC की वैल्यू कितनी है? CE की वैल्यू 5x - 3। तो बच्चों चारों रेशियोज हमें पता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलैरिटी, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, व्हाट आई कैन राइट हियर इज, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में भी आपको मैंने बताया था, DE इज पैरेलल टू BC। तो ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली राइट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। सो वंस यू राइट दिस, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई AD इंटू EC इक्वल टू AE इंटू BD। सो बच्चों हमें सारी वैल्यूज पता है, लेट्स पुट इन द वैल्यूज। AD कितना है? 3x - 2, EC कितना है? 5x - 3 इक्वल टू AE कितना है? 5x - 4 एंड BD इज 7x - 5। तो बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आता है। सो 15x² - 10x - 9x, okay, -10x - 9x is -19x plus 6 is equal to 35x² and -25x - 28x. So 7 into 4 28 and 5 into 5 25, so -28 minus 25, so that is -53x plus 20. तो बच्चों क्या बना? Let's simplify this, take everything to the one side. So 20x², let's take all this left hand side to the right hand side, है ना। 35 minus 15 is 20x², minus 53 plus 19, तो will become minus 34x, okay, plus 20 minus 6, so plus 14 equal to 0, ठीक है। तो आप I think 2 से डिवाइड कर सकते हो अभी आप इसको। 10x² minus 34 becomes 17x plus 7 equal to 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करना ही बहुत ईजी हो गया, फैक्टर सीधे बने हुए हैं, 10 into 7 and the sum is 17, right? So let's solve this. So 10x² minus 10x minus 7x plus 7 equal to 0. So 10x common, x minus 1 minus 7 x minus 1 equal to 0. So factorize होके क्या बनता है? x minus 1 and 10x minus 7 equal to 0. So बच्चों this will give you x equal to 1 and x equal to or x equal to 7 by 10. तो बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे विल आंसर ऑप्शन सी एंड मूव फॉरवर्ड, है ना, ज़्यादा नहीं सोचते इसके बाद। बट बच्चों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, लेंथ्स नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, राइट? लेंथ्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है, सो ऑब्वियसली आप मान के चलोगे कि D इज बेसिकली लाइंग ऑन AB, है ना। तो कोई भी लेंथ नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए, ये जो वैल्यूज हैं 3x - 2 5x - 4 ये सब। सो x इक्वल टू 1, व्हाट यू शुड डू इज x इक्वल टू 1 डाल के देखो सब में, आपके पास ऑप्शंस क्या आएंगी? AD विल बी 1, AE विल बी 1, BD विल बी 2, CE विल बी 2, वो फाइन है, राइट, सब पॉजिटिव है। सो x इक्वल टू 1 इज करेक्ट। बट व्हेन यू पुट 7 by 10, बच्चों 7 by 10 AD में डालते हैं, सो इट बिकम्स 21 by 10 minus 2, सो दैट इज पॉजिटिव, वो तो फाइन है। बट द प्रॉब्लम इज विद AE। जब आप AE को देखोगे, 5 times 7 by 10 is 3.5 बेसिकली, राइट, 0.7 बन गया ना ये। सो 0.7 into 5 is 3.5,
-4, तो ये बन गया नेगेटिव। तो AE अब नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। सो 7/10 है गलत वैल्यू। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक केस जो सॉल्व हो गया तो जो आंसर आया वही आंसर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो बात ये है, आपने तो इक्वेशन फॉर्म की है, ऐसा नहीं कि x/7/10 गलत है कुछ, वो सही है। इफ यू पुट 7/10 इन दिस थिंग, वो इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। बट फर्दर वी नो कि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है ना, ठीक है, लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल। 7/10 is incorrect, so the answer will be only option A, that only one is correct, ठीक है। so be careful about it, ध्यान रखना है, ठीक है। I hope you are understanding this thing, okay। चलो, I hope this is clear। चलो, so that was NSCJS 2011 question, तो good one to trick कर सकते हैं आपको, right। Alright बच्चों, तो next question again an NSCJS question, previous year 2018, 2 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। So let's see what it is, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। In a triangle ABC, let AD be the median from A, okay, and let E be a point on AD। तो चलो, let's draw a triangle first। So that is a triangle बच्चों, okay, this is a triangle ABC and AD be a median from A। तो यहां से हमने मीडियन भी ड्रॉ कर दिया, ओके, we drew a median। उसके बाद let E be a point on AD such that AE is to ED is 1:2 and let BE extended meets AC at F। तो डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है, बहुत जरूरी है बच्चों। तो ऐसे एक पॉइंट E है जो इसको 1:2 में डिवाइड करता है, ओके, इस तरह से, और ये बन गया पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों ये डायग्राम बन रहा है हमारे पास। लेट मी पॉइंट नेम सम थिंग्स ऑल्सो, ABC, AD be a median, this is point E, ठीक है। AE is to ED is in the ratio 1:2, ठीक है, and let BE extended meets AC at F। ये बन गया बच्चों, तो ये है पॉइंट F, ठीक है। Now what we have to find is AF is to FC। तो बच्चों डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर आप कह लो सिमिलैरिटी, इट्स वन एंड ऑफ द सेम थिंग, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं, विल डू अ कंस्ट्रक्शन, ओके, विल डू अ कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज इट, ड्रॉ, ओके, लेट्स से DM पैरेलल टू BF, ओके, वेयर M इज ऑन AC। ऐसा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ हेयर, चलो ये कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, ठीक है। सो ओके, एज्यूम करो ये D सही है। सो DM पैरेलल टू दिस लाइन BF, तो ये इसके भी पैरेलल हो गया। नाउ डूइंग दिस हाउ विल इट हेल्प अस, कैसे हेल्प करेगा बच्चों। देखो हमें क्या पता है, AE इज टू ED इज 1:2। देखो AE इज टू ED इज 1:2, ये हमें मालूम है, राइट। सो बच्चों सिंस आई हैव मेड दिस लाइन टू बी पैरेलल, ठीक है, तो EF इज पैरेलल टू DM। सो इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल ADM, उसके अंदर EF इज पैरेलल टू DM, तो अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और यू कैन से इफ EF इज पैरेलल टू DM, ओके, लेट मी राइट हियर, सिंस EF इज पैरेलल टू DM, तो उससे मैं क्या बोल सकता हूं, दैट AE इज टू ED शुड बी सेम एज AF इज टू FM, right? I can say this, AE is to ED is equal to AF is to FM in triangle ADM। I am doing this in triangle ADM, ये समझना है हमें, right? Once this is done and AE is to AD कितना है, ED कितना है, 1/2। तो बच्चों AF upon FM is 1:2। So since this is 1:2, तो एक काम करते हैं, let AF be X, तो FM कितना हो गया, 2X, right? AF is to FM is 1:2। So I have assumed this, X तो ऐसे ही है कुछ, ठीक है, तो बट रेशियो क्लियर हो जाती है उससे, AF is to FM is 1:2, so X is to 2X। नाउ बच्चों क्या करते हैं, सिंस D is the median, so BD is to D equal to DC है। अब यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल BCF, ओके, और FBC। नाउ इन ट्राइंगल FBC what happens again, DM is parallel to BF, मैं लिख देता हूं DM is parallel to BF, वही हमने कंस्ट्रक्शन किया था। सिंस दिस इज पैरेलल, मैं क्या लिख सकता हूं,
CM is to MF, CM is to MF is equal to CD is to DB, राइट? CD is to DB मैं बोल सकता हूं. इससे फायदा क्या है? सिंस D is the median, तो CD और DB तो इक्वल हो गए, राइट? CD and DB is equal, so this ratio will be equal to 1, which means CM is equal to MF. ठीक है, since D is the midpoint, CD will be equal to BD, तो CM is equal to MF. इसको आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल सकते हो, सिंस इट्स द मिड पॉइंट. अदरवाइज दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग. सो CM is to FM हो गया सेम. तो बच्चों अगर FM 2x था, इफ FM भी कैलकुलेटेड 2x, तो CM भी कितना हो गया? 2x हो गया. सो इन रेशियोज दिस इज प्रीटी यूजफुल. हमें क्या फाइंड करना है? AF is to FC. अब बहुत सिंपल हो गया. AF अपॉन FC विल बी इक्वल टू व्हाट? AF कितना है? x है. FC कितना हो गया टोटल? 2x plus 2x, 4x. So this ratio is 1:4. So your answer would be option C. ठीक है बच्चों. So this is how just dropping a perpendicular. This is very very useful. बहुत ध्यान रखना ऐसे में. कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कहाँ पे रेशियोज दिए हों इस तरह से, सो यू कैन थिंक ऑफ कि एक पॉइंट से पर्टिकुलरली अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इट माइट बी वेरी यूजफुल. ठीक है, जैसे कि हमने DM पैरेलल टू BF ड्रॉप किया, बिकॉज इन 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स वो साइड्स के पैरेलल होने का फायदा उठाया हमने, राइट? ओके बच्चों, आई होप इट इज क्लियर नाउ. ठीक है, सो इट वाज इन NSCGS 2018 क्वेश्चन. आई वुड से दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. बहुत इजीली नहीं स्ट्राइक करता है, सो इट वाज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन. ठीक है, कंसिडरिंग कि पेपर में आपके पास टाइम भी कम होता है. ठीक है, सो चलो, आई होप इट इज क्लियर एंड हम आगे बढ़ते हैं इसको देखते हुए. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. सो व्हाट डज दिस से बच्चों? इन द फिगर D is the midpoint of BC. okay, midpoint है BC का. so again BD is equal to DC and DE is bisector of angle ADB. ADB का एंगल बाइसेक्टर है and EF is parallel to BC. ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें दे दी हैं, तो करें क्या? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सी, एंगल D का एंगल बाइसेक्टर है, सो देयर इज अ थ्योरम कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. व्हाट डज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज? कि अगर आप एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, इट डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इन द सेम रेशियो एज द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल. ओके, तो अकॉर्डिंगली इन दिस ट्राइंगल ABD, ओके, इन ट्राइंगल ADB, सिंस DE इज द एंगल बाइसेक्टर, ओके, तो मैं नाम लिख देता हूं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, सो व्हाट डज दिस स्टेट्स नाउ अकॉर्डिंगली? सो AD is to DB, AD is to DB will be equal to AE is to BE. AE is to BE. So बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है? Since EF is parallel to BC, right? ये गिवन है आपको, EF is parallel to BC. आपको और क्या बोल सकते हो? अगेन द सेम रेशियोज थिंग्स. तो आप बोल सकते हो EF parallel to BC है तो AE is to EB और BE is same as AF upon FC. ये बोल सकते हैं. बट हमने यहां पे देखा AE is to BE तो AD अपॉन DB के इक्वल है, राइट? हम ये बोल सकते हैं AD is to DB के इक्वल है. सो कंबाइनिंग दीज टू I can write AD is to DB. AD is to DB is equal to AF is to FC. यहां पे एक और चेंज भी है. तो BD या फिर DB जो है बच्चों वो DC के इक्वल है, राइट? सिंस D इज द मिड पॉइंट, तो मैं इसको भी रिप्लेस कर लेता हूं ना, मैं इसको भी रिप्लेस कर लेता हूं. सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज AD अपॉन DC इज इक्वल टू AF अपॉन FC, है ना? सो बच्चों ऐसा नहीं होगा, ये कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बन गया. नाउ इन दिस ट्राइंगल ADC, DF जो है लाइन वो बाइसेक्ट कर रही है ऑपोजिट साइड को इन द सेम रेशियो एज द साइड्स कंटेनिंग देम. दिस विल इंप्लाई दैट DF इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC. ठीक है बच्चों, ADC का एंगल बाइसेक्टर बन गया. सो लेट मी मार्क हियर, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया. एंड टोटल एंगल BDC, ये पूरा तो लीनियर एंगल है बच्चों,
दिस होल एंगल इज लीनियर एंगल एट डी, राइट? तो मैं नेमिंग कर देता हूं थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, सो बच्चों लेट्स से दिस एंगल इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज वाई, दिस इज वाई। मुझे फाइंड क्या करना है? ऑप्शंस आर ऑल रिगार्डिंग एंगल ईडीएफ, ईडीएफ तो एक्स प्लस वाई मुझे फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स सी दिस। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? टोटल एंगल लीनियर है, राइट? सो x plus y should add up to 180 degrees. So this will give you 2x plus 2y equal to 180. 2 times x plus y equal to 180. So finally x plus y is equal to angle EDF is equal to 90 degrees. So बच्चों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो बहुत सिंपल हो गया, एंगल EDF इज एंगल 90, राइट? सो इन दिस थिंग ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों, देखो बच्चों तो क्या दिया हुआ है? ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, यहां पे राइट एंगल है, ठीक है? एंड AC इज 200 सेंटीमीटर, पूरा AC इज 200 सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन दैट AD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FC। सो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट? चारों साइड्स इक्वल है, सो टोटल 200 है। सो 200 by 4, ऑल दीज स्मॉल लेंथ्स आर 50 सेंटीमीटर्स ईच, 50 सेंटीमीटर्स, 50 सेंटीमीटर्स, 50 सेंटीमीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है? एंड वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट BD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ऑल्दो बहुत ईजी है बच्चों, तो इसमें एक चीज का ध्यान क्या रखना है, ध्यान से करते हैं। सो देखते हैं, देखो बच्चों इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज करना है बच्चों की, दैट E इज द मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो फ्रॉम द राइट एंगल, राइट, द लेंथ BE, सो अकॉर्डिंग टू दैट AE is equal to BE is equal to CE. Okay, so the midpoint of the hypotenuse of the right angle triangle is basically the circumcircle, right? Circumcenter होगा, sorry. So AE will be equal to EC will be equal to EB. वहां से तीनों vertices की लेंथ इक्वल होती है, वर्टेक्स की लेंथ, ठीक है? So what does this mean? This imply, तो BE कितना हो गया? This implies BE is 100 सेंटीमीटर्स, राइट? क्योंकि AE की वैल्यू 50 प्लस 50 100 हो गया एंड EC इज ऑल्सो 50 प्लस 50 100, और हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होती है लेंथ, सो हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑल्सो 100। ओके, तो BE की वैल्यू आ रही है आपके पास 100 सेंटीमीटर्स। तो अब क्या करें बच्चों, यहाँ पे अब करें क्या? BD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट एंगल तो एक ही है ना B, तो उसमें BD स्क्वायर तो फॉर्म नहीं हो पाएगा, राइट? सो देयर इज अ वे टू अंडरस्टैंड दिस। देयर इज अ थ्योरम कॉल्ड एपोलोनियस थ्योरम, ओके, Apollonius theorem. So generally in a triangle what does this mean? ठीक है, मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं ABE ट्राइंगल में, बिकॉज उसके लिए BD क्या है? मीडियन है, ओके? इन ट्राइंगल ABE आई विल शो यू। इन ट्राइंगल ABE BD इज अ मीडियन। तो what does this theorem states? It states that sum of the squares of the sides containing the median, तो AB square plus BE square is equal to twice of length of the median square BD square plus half of AE, okay, जिसको वो डिवाइड कर रहा है मीडियन, half of that is AD, तो plus AD square, उसको आप DE square भी लिख सकते हो, सेम बात है, राइट? दिस इज व्हाट एपोलोनियस थ्योरम स्टेट्स इन अ ट्राइंगल, ओके? तो अब क्या बना बच्चों इसमें, देखो AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर कितना है? AB मुझे मालूम है, BE स्क्वायर मुझे मालूम है 100 हो गया, 100 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD, मुझे ढूंढना है BD स्क्वायर, आई वांट टू फाइंड, प्लस AD स्क्वायर, AD कितना है? 50 स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सो सिमिलरली इन ट्राइंगल, इसी को ट्राइंगल BEC में भी अप्लाई करते हैं, ट्राइंगल BEC, इफ वी अप्लाई दिस क्या आएगा? सिमिलरली BC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर
is equal to twice of bf square plus cf square, bf square plus cf square. ठीक है बच्चों, तो फिर से वैल्यू डाल देते हैं. bc square plus be square is 100 square is equal to twice of bf square plus cf square which is 50 square. So equation number 2. Now just add these two equations. So 1 plus 2. This will give you ab square plus bc square plus 2 times 100 square is equal to, राइट साइड पे जब हम ऐड करेंगे क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आई विल गेट bd स्क्वायर प्लस bf स्क्वायर, ठीक है, प्लस 50 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 50 स्क्वायर इंटू 2, तो एक्चुअली 4 टाइम्स 50 स्क्वायर हो गया, राइट. मैं अगर ओपन करता हूँ ब्रैकेट्स को, 2 टाइम्स 50 स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, 2 टाइम्स 50 स्क्वायर फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, इफ आई ऐड देम अप दैट इज 4 इंटू 50 स्क्वायर. तो बच्चों डरो मत, कैलकुलेशन कोई लेंदी नहीं है. यहाँ पे यूजफुल क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, सो दैट इज 200 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 स्क्वायर माइनस, बच्चों ये जो 4 इंटू 50 स्क्वायर है ना, 4 को बोल सकता हूँ ना 2 स्क्वायर. सो व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं लिख सकता हूँ इसको एक्चुअली 2 स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर, इस क्वांटिटी को, राइट. सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 100 स्क्वायर, ठीक है. तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो इट इज बेसिकली 100 स्क्वायर, राइट, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर. ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर है. सो एक्चुअली इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 200 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर. तो ये बहुत ईजी हो गया बच्चों. 200 का स्क्वायर इज ईजी, 40,000 प्लस 10,000, सो दैट बिकम्स 50,000. दिस मीन्स बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 50,000 बाई 2, सो दैट इज 25,000. ठीक है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 25,000. ठीक है बच्चों, सो इजी इनफ, बट यस इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, राइट. यू शुड बी नोइंग दिस अपोलोनियस थ्योरम एंड हाउ टू अप्लाई दिस. ठीक है, तो स्क्वायर्स की फॉर्मेट वहीं पे आएगी या पाइथागोरस थ्योरम से आती है, राइट. सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग कैन बी डन विद दिस पर्टिकुलर थ्योरम ओनली. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ, है ना, क्लियर हो गया होगा सबको. सो लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्या आंसर आ रहा है इसका चेक भी कर लेते हैं. ओके, राइट, सो द आंसर इज 25,000, राइट. चलो, ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एन NSEJS 2011 क्वेश्चन, अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, ये भी देखते हैं. ओके, लेट्स सी. तो बच्चों इन ट्राइंगल ABC, D is a point on AC such that angle ABD is half of angle ABC. Okay, D is a point on AC. Okay, if AB is 36 and BC is given, CD is given, find the length of DA. Okay, so it's very easy guys. ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार. चलो, सो ABD is a triangle, D is on AC. ओके, तो चलो ऐसे बना देते हैं. ओ सॉरी, ऑल राइट. ठीक है बच्चों, तो हम लिख देते हैं दिस इज A B C. D is a point on AC such that angle ABD is half of ABC, meaning being that BD is an angle bisector. ठीक है बच्चों, so BD is the angle bisector, so these two angles are equal. तो बहुत easy है, using angle bisector theorem we will be using angle bisector theorem. Why? Because हमें क्या क्या मालूम है. AB is given to be 36 centimeters, BC is given to be 48 centimeters, CD is given to be 28 centimeters, and we are being asked about AD, the length of DA. बहुत easy हो गया इसके साथ, one line question. ठीक है, and NSEJS question पेपर में ऐसा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, राइट. All you need to know is angle bisector theorem, that's it. तो using that angle bisector theorem हमने क्या बोला था, it divides the opposite side AD is to DC, right, in the same ratio as the side containing that angle, meaning AB is to BC is equal to AB upon BC. So just put in the values
AD हमें फाइंड करना है, दैट इज DA, चलो जो दिखा हुआ है, अपॉन DC इज हाउ मच 28 इज इक्वल टू AB इज 36 अपॉन 48. ओके, सो लेट्स सी क्या ऑप्शन आ रहा है. सो 36 विल कैंसिल फॉर 3, दिस फॉर 4, है ना, 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 इज द कॉमन फैक्टर, दिस 4 विल कैंसिल 28 फॉर 7. It's very easy. So DA is 3 into 7. So DA will be equal to 21 centimeters. Right बच्चों? So very easy. The answer will be option B. तो आप देख सकते हो NSCGS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इजीली हो पा रहा है जस्ट यूजिंग वन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ठीक है, बट यस यू शुड नो दिस, अदरवाइज थोड़ा ऐसी कॉम्प्लेक्स लगेगा. देन यस, अगर आपको पता है तो यू विल बी एबल टू know this very quickly, or within a minute you will be able to solve this question, है ना, hardly it takes 1 minute. All right, so this would be the easiest method to do this. So okay बच्चों, you can see the answer is 21. All right guys, so बच्चों this was the last question of this session. Okay, so coming back to this, if you guys want to be enrolled in our NSCGS courses, we are doing many more things just like this, and उसमें theory भी cover होती है, right? And if you're interested, you can log on to this site and register for the batch, which batch you want. Also, other than NSCGS, there are mathematics Olympiad batches also, pre-RMO batches. More information is given out on these things on pre-RMO and RMO videos. Chetan sir will have given the information, या फिर अभय sir ने भी information दिया होगा. ठीक है, so we are teaching in mathematics courses also. So if you are interested, or if you have solved, or if you have already qualified also IOQM or INMO, you can reach out to us. We'll try to help you a lot, as much as we can. ठीक है, so that's it I think from my side. So please guys, if you are interested, please log on to this site and you can register for our NSCGS courses, right? So thank you everyone, thank you for seeing this video, seeing this session. I hope you learned something. So many good concepts we covered through the questions. ठीक है, तो different approaches भी हमने देखी, है ना. So all right guys, thank you very much. We'll see you in the next video. Okay, so keep safe, be happy. Okay, bye bye, good night.